کہ وزیراعظم شہباز شریف کی چودھری شجاعت کی رہائش کا آمد۔ وزیراعظم شہباز شریف کی چودھری شجاعت حسین سے ملاقات اور خیریت دریافت کی ہے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث کسی بھی ملزم کو کوئی رعایت نہ دینے پر اتفاق ہوا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف سے خواجہ سلمان رفیق بھی ملے۔ مزید جانتے ہیں محمد یاسین سے۔ جی یاسین بتائیے گا۔ جی وزیر شہباز شریف صدر پاکستان مسلم کاف اور سابق وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین کے گھر جوڑے روڈ پر گئے، جہاں انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی۔ ملاقات میں 9 مئی کے واقعات پر موجودہ سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چودھری شجاعت حسین نے ملاقات میں جناح ہاؤس پر ہونے والے حملے کی مذمت کی اور دونوں رہنماؤں کا آپس میں اس بات پر اتفاق ہوا کہ 9 مئی کو پیش آنے والے واقعے میں ملوث افراد کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی۔ تاہم اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ کسی بے گناہ کو اس میں ملوث نہیں کیا جائے گا اور جو بھی ان واقعات کا ماسٹر مائنڈ ہے اس میں بھی سخت سزا دی جائے گی۔ ان واقعات سے قوم کے سر جو ہے وہ شرم سے جھکے ہیں۔ چودھری شجاعت حسین نے ملک کی موجودہ معاشی صورتحال پر بہتر بنانے کے حوالے سے شہباز شریف کی کوششوں کو سراہا۔ ملاقات میں وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، جنرل سیکرٹری پاکستان مسلم لیگ کا پنجاب چودھری شاف حسین بھی موجود تھے۔ شہباز شریف چودھری شجاعت سے ملاقات کے بعد واپس چلے گئے۔ جی یاسین یہ بتائے گا کہ موجودہ صورتحال میں الیکشن کا بھی شور ہے، تو اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی کہ کب تک الیکشن متوقع ہیں، یا جو اس سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ مفاہمت اور بات چیت مذاکرات کا ڈور کھلا تھا، اس حوالے سے بھی کوئی بات چیت ہوئی؟ جی بالکل اس بات پر اتفاق ہوا ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت وہ اپنی مدت پوری کرے گی اور مدت کے بعد ہی الیکشن ہوگی اور اس کے بعد کوئی ایک دن بھی آگے نہیں جایا جائے گا۔ جب مدت پوری ہوگی تو اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے۔ تو ہم جو اس حوالے سے یاسین مدت کا مطلب کہ اکتوبر میں الیکشن ہوگے، کیونکہ پنجاب کی اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور 14 مئی تاریخ دی گئی تھی سپریم کورٹ کی جانب سے۔ جی بالکل، یہ دونوں رہنماؤں کا کہنا تھا کہ چونکہ اگر پنجاب کے الیکشن پہلے ہو جاتے ہیں تو دوسرے جو چھوٹے صوبے ہیں ان میں وہ ان کو یہ قابل جو قبول نہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کا اعتراض بھی بالکل جائز ہے۔ اس لیے کسی ایک صوبے اور خاص طور پر پنجاب جو کہ سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے الیکشن مقررہ وقت سے پہلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اگر مقررہ وقت سے پہلے جو اگر پنجاب کے الیکشن ہو گئے تو پھر آئندہ کے لیے جو پنجاب ہے وہ مرکز میں جو حکومت بنے گی اس پر وہ حاوی ہو جائے گا، اور وہ جو جس کی حکومت پنجاب میں ہوا کرے گی وہی جا کے وفاق میں حکومت بنانے ایک اہل ہو سکے گا، بنانے کے قابل ہو سکے گا، جو کہ باقی صوبے اس پر پوری طرح معترض ہیں۔ اس لیے جو تمام الیکشن پورے ملک کے الیکشن ہیں صوبائی اور وفاقی، یہ ایک مقررہ وقت پر اپنے مقررہ وقت پر ہی ہوں گے، اس سے پہلے نہیں ہو سکتے، جو کہ بالکل جائز مطالبہ ہے ان کا۔ آپ کا بہت شکریہ یاسین۔ 9 مئی کے ذمہ داران قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکیں گے۔ عمران نیازی نے وہ کر دکھایا جو 75 سال میں دشمن نے بھی نہیں کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطح کا اجلاس، اس میں خطاب میں بولے کہ اداروں میں دراڑیں ڈالنے والے ملک کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، کسی بے گناہ سے زیادتی نہیں ہوگی اور کوئی مجرم سزا سے بچ نہیں پائے گا۔ کابینہ نے کمیشن آف انکوائریز ایکٹ 2017 کے تحت آڈیو لیکس کمیشن قائم کیا۔ واقعات 9 مئی سے لے کر اس کے بعد جو ہوئے وہ ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 9 مئی پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن ہمیشہ کے لیے یاد رکھا جائے گا، تاریخ دن، جس دن پاکستان کے لبادے میں دہشت گردی کی گئی۔ عمران نیازی کے حکم پر ان کے جتھوں نے ملک دشمنی کی اور بدقسمتی سے وہ کام کر دکھایا جو 75 سال میں دشمن نہ کر سکا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ، اور یہ بھی ایک شومی قسمت ہے کہ تحریک طالبان نے قائد اعظم ہاؤس زیارت کو جلایا اور عمران نیازی اور اس کے
जत्थों ने कायदे आज़म हाउस जो कि को कमांडर हाउस बन चुका है उसको राख बना दिया। ये बात ज़हन में रहनी चाहिए कि तहरीक तालिबान ने GHQ पर हमला किया था और इस मुल्क की बदकिस्मती देखें कि इन पाकिस्तानी नुमा दुश्मनों ने GHQ पर जमान पार्क में ज़िले इंतज़ामिया का ऑपरेशन मुकम्मल। तमाम मुतल्लिका इदारों ने सफाई का काम मुकम्मल करने के बाद ग्रीन बेल्ट्स को भी बहाल कर दिया। जमान पार्क से मुल्हिका सड़कें ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। इमरान खान की सिक्योरिटी पर पुलिस एहलकार तैनात हैं। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है ये बताएंगे हमजा खुर्शीद जो कि इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़मान पार्क के बाहर और ये वो ज़मान पार्क है जो मुतअद्दिद महीनों से मेले का समा देता रहा है। मेरे अक़ब में जो मौजूद ग्रीन बेल्ट है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नुमाइंदगान हैं उनके कैंप्स रहे और उसके अलावा इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए लगाए गए कंटेनर रहे। उसके अलावा यहाँ पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद रही, तकरीबन 2000 से 2500 हर वक्त कारकुनान जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहे। लेकिन 2 दिन पहले यहाँ पर जो है वो ज़राए के मुताबिक इमरान खान का जो है वो निगरान हुकूमत के साथ मुआहदा ये हुआ कि जो अगर हम ये ग्रीन बेल्ट क्लियर कर देंगे तो आपके जो गिर्द 3 दिन तक जो सिक्योरिटी इंहिसार रहा वो उसको क्लियर कर दिया जाएगा। और निगरान पंजाब हुकूमत अपने वादे की तकमील की। ये जो ग्रीन बेल्ट है इसको तमाम मुतल्लिका इदारों ने मिलकर जो है वो क्लियर करवाया। उसके अंदर LWMC, LDA और एंटी इंक्रोचमेंट की टीमें आई जिन्होंने यहाँ पर कैंप्स उतारे और उसके अलावा जितने बैनर्स आवेज़ा थी और उसके अलावा जितनी भी मुतअद्दिद चीज़ें थी और रुकावटें थी उनको हटाया 2 दिन के ऑपरेशन के बीच में। और कल रात जो है जो एक आखिरी चीज़ रह गई थी वो मेरे अक़ब में लगी हुई इमरान खान की सिक्योरिटी के लिए फेंस है जो कि ग्रीन बेल्ट पर थी और उसको ज़मान पार्क की इंतज़ामिया ने ही ग्रीन बेल्ट से हटाकर ज़मान पार्क की सड़क के किनारे पर कर दिया है। और उसी के बाद जो है निगरान पंजाब हुकूमत के वादे के मुताबिक रात गए जो है वो ज़मान पार्क के तमाम जो मुल्हिका जो रास्ते हैं जो कि बंद किए गए थे पुलिस की जानिब से उनको बहाल कर दिया गया है। इस वक्त जो है वो ट्रैफिक रवा दवा है जो मुतअद्दिद महीनों से सुस्त रवी का शिकार रही है और इस सड़क के ऊपर हैवी लोड रहा है ट्रैफिक का कैंप्स की वजह से, क्योंकि कैंप्स जो हैं वो सड़क पर मौजूद रहते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं फ़िलहाल ज़मान पार्क की सूरत हाल की तो ज़मान पार्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो कहीं दूर दूर नज़र नहीं आते और जो यहाँ पर मेले का समा था अब ज़मान पार्क जो मुतअद्दिद महीनों पहले अपनी असल शक्ल में होता था वो अब वापस आ चुका है। इसके अलावा यहाँ पर जो पुलिस है जो कि मुज़ाकरात के बायस जो एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उसके मुआहदे के मुताबिक जो है वो उनको सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ पर मुतअद्दिद एहलकार मौजूद हैं जो कि सिक्योरिटी पर फ़ायदे हैं। और उसके अलावा जो यहाँ से लोहे के बने हुए मोर्चे उठा लिए गए थे क्योंकि पुलिस की जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई थी वो वापस आ गए हैं। उसके अलावा पुलिस के बैरियर्स वापस आ गए हैं और इसके अलावा पुलिस ने जो है वो इमरान खान का जो घर है उसकी भी सिक्योरिटी संभाली हुई है। जी हमजा बताइएगा, देखा गया है कि ज़मान पार्क में कारकुनान के साथ अहम रहनुमा भी मौजूद होते थे। कारकुनान तो जा चुके हैं, अहम रहनुमा के हवाले से आप बताइएगा क्या ज़मान पार्क में वो मौजूद हैं इस वक्त? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त इमरान खान की रिहाइश गाह पर जो है वो सिर्फ इमरान खान और उनकी अहलिया मौजूद हैं। उसके अलावा यहाँ पर किसी भी किस्म के नुमाइंदगान या फिर कारकुनान मौजूद नहीं है क्योंकि ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात यही हुए थे कि इस सड़क को जो है वो बहाल रखा जाएगा और इस सड़क पर किसी भी किस्म की सियासी एक्टिविटी नहीं की जाएगी ताकि किसी भी किस्म की आवाम को तंगी ना हो सके और जो यहाँ के रिहायशी लोग हैं उनको किसी किस्म की तंगी ना हो सके। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए और कुछ सियासी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर नुमाइंदगान जो हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी और चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मुल्क की अज़मत के निशान जिन्ना हाउस पर हमला करने वाले बुलवाइयों ने दुश्मन वाला काम किया है। हमले में मुलव्वस शरपसंदों को आर्मी एक्ट के तहत कोर कमांडर हाउस में अदालत लगा कर सरेआम सज़ा देनी चाहिए। राहिल अली की रिपोर्ट।
वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर महमूद अशरफी का उलमा के हमरा जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हमारी रेड लाइन हमारा दीन, वतन और पाक फौज है। 9 मई के वाक़यात पर मुल्की सलामती के इदारे खामोश हैं तो इसे कमजोरी न समझा जाए। जलाओ घेराव के बाद अब पाकिस्तान मजीद मजबूत होगा। इलेक्शन न होने का मतलब ये है कि तनसीबात को आग लगा दें। जिसने भी ये काम किया है, हमारा मुतालबा ये है, मैं पाकिस्तान उलमा कौंसिल और मुल्क के तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा और मशाइख की तरफ से ये मुतालबा करता हूँ कि इसी जना हाउस में कोर्ट लगाई जाए और सरेआम इनको सजाएं दी जाए। हाफिज ताहिर महमूद अशरफी ने मजीद कहा कि जो लोग दानिस्ता और गैर दानिस्ता हमले में इस्तेमाल हुए, उन्होंने दीन और फौज से मोहब्बत नहीं की। किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी, जबकि कोई गुनहगार सजा से नहीं बच पाएगा। जो दुश्मन मुल्क न कर सका वो अपने बलवाइयों ने कर दिखाया। पाकिस्तान की फौजी क़यादत उस वक़्त फैसला कर लेती तो कोई मुश्किल काम नहीं था इन बलवाइयों को रोकना। ये दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्दी के अजीम और मुनज़्ज़म तरीन साजिश थी। ये मकरूह तरीन दहशतगर्द है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ताहिर महमूद अशरफी ने ज़ल्मे खलीलज़ाद को आड़े हाथों लिया। बोले उसके मुँह से कभी किसी ने अफगानियों, कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक की बात नहीं सुनी। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ राहील अली, लाहौर न्यूज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। आर्मी चीफ को 9 मई के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। आर्मी चीफ ने कोर हेडक्वार्टर्स में ऑफिसर्स और जवानों से खिताब किया। आर्मी चीफ ने मादरे वतन पर जान कुर्बान करने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। कोर कमांडर लाहौर ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ ने जना हाउस का भी दौरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौका पर कहा कि फ़ौज अपनी ताकत आवाम से हासिल करती है। आर्मी चीफ ने सर्विसेज अस्पताल का भी दौरा किया। ज़ेर इलाज TIG ऑपरेशंस अली नासर रिजवी की आयादत की। अलावाजी आर्मी चीफ कुर्बान लाइन्स भी गए, जहां आर्मी चीफ ने पुलिस हुकाम से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने पुलिस के शोहदा को भी खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ ने फसादात और तोड़ फोड़ के दौरान पुलिस की पेशा वाराना महारत और तहम्मुल को सराहा। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए अवामी रिक्शा यूनियन की लाहौर प्रेस क्लब से अमरीकी काउंसलेट तक इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का इनेकाद किया गया। सिविल सोसाइटी, वकला, मजदूर तंजीमों और सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स ने रैली में शिरकत की। अवामी रिक्शा यूनियन का पाक फौज से यकजहती का इजहार। लाहौर प्रेस क्लब से अमरीकी कौंसलेट तक इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली का एहतमाम। सिविल सोसाइटी, वकला, मजदूर तंजीमों और सैकड़ों रिक्शा ड्राइवर्स की रैली में शिरकत। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली की क़यादत अवामी रिक्शा यूनियन के चेयरमैन मजीद गौरी ने की। मजीद गौरी ने कहा कि पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शोहदा हमारा फख्र हैं। हम पाक फौज के साथ डट कर खड़े हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा पाक फौज के शाना बशाना खड़ा है। फौज है तो पाकिस्तान है, पाकिस्तान है तो हम हैं। ठीक है जी। हम कल इंशाअल्लाह ताला जना जा रहे हैं। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग, वकला बरादरी और ख़वातीन, बच्चे, बेटियां, ये सब हमारे साथ वहाँ पर कल जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपनी पाक फौज से कल इज़हार यकजहती करेंगे। रैली के शुरका का कहना था कि 9 मई के वाक़यात में मुल्क का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान हुआ, जिसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। हम तो एक ही लफ्ज़ करेंगे, अफसोसनाक। इन्होंने जो भी काम किया है घटिया किया है। हम पाक फ़ौज के साथ हैं, शाना बशाना खड़े हैं। अगर उनको हमारी जान की भी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे बच्चे भी, हम मेहनत कश लोग उनके साथ हैं। मैं अवामी रक्षा यूनियन की तरफ से पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ ये जो 9 मई को वाक़या हुआ है, जिसमें GHQ, रेडियो पाकिस्तान और मुख्तलिफ पाकिस्तान की इमारत को जलाया गया है। रैली के शुरका ने हाथों में बैनर्स उठा रखे थे जिन पर पाक फ़ौज के हक़ में नारे दर्ज थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट आमद। मोहसिन नकवी की चीनी कौंसलेट जनरल सौ शरीन से मुलाकात में तजारती और मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 72 साल मुकम्मल होने पर चीनी कौंसल जनरल को मुबारकबाद दी और केक भी काटा गया। इसी बारे मज़ीद तफसीलात बताएंगे मोहम्मद यासीन बताएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी पाकिस्तान चीन की सफारती तल्लुकात के 72 साल के मौका पर आज चीनी कौंसल जनरल गए सूबाई वज़ीर एहसन तनवीर, मारूफ सनतकार गोहर जाज और मियाँ एहसन
भी उनके हमरा थे। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के कौंसल जनरल ज़ाओ शेरिंग से मुलाकात की और इन्हें पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 72 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद दी और केक भी काटा। चीनी कौंसल जनरल ने निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी का शुक्रिया अदा किया और उन्हें के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में तजारती व मुआशी ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने जनरल कौंसल जनरल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ज़राअत और हेल्थ केयर, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबे में चीन के ताउन से इस्तेफादा करेंगे। पाक चीन ताल्लुकात का नया साल दोनों ममालिक के दरमियान ज़िंदगी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद नहीं रहे खुलेगा। पाकिस्तान और चीन एक रोशन कल के लिए शाना बशाना खड़े हैं। हमारा रिश्ता पूरी दुनिया के ममालिक के लिए एक रोल मॉडल है। पाक चीन ताल्लुकात का बाहमी एतमाद बेमिसल है। जरूरत के वक्त चीन की गैर मुतज़लज़ल हमायत पाकिस्तान चीन दोस्ती का मुंह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि चीन हमारा हर मौसम का दोस्त, मजबूत शराकतदार और काबिल एतमाद पड़ोसी साबित। पाकिस्तान की तरक्की में चीन के अनमोल तावन के दिल से कदर करते हैं और चीन की कामयाबियां पाकिस्तान के लिए पैसे फख्र हैं। इलाकाई राब्तों को फरोग देने में पैक की एक संगे मील साबित हो रहा है। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए पाक चीन तल्लुकात की अहमियत पहले से ज्यादा है। हुकूमत पंजाब मुख्तलिफ शोबे में चीन की हिमायत और तावन पर शुक्रगुजार है। हुकूमत पंजाब में इस बेमिसाल दोस्ती और ताउन को मजीद बढ़ाने के लिए पुरज़म है। चीनी कौंसल जनरल ने इस मौका पर कहा कि पाकिस्तान और चीन इंतहाई बातमात दोस्त हैं। पंजाब हुकूमत के साथ हर तरह का ताउन जारी रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया यासीन।